بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। ज़बानदानी के निसाब को मकासद के लिहाज से मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जुज़ है मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ह करना। नंबर 2 अमली क़वायद। 3 रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़बान का इस्तेमाल। और आखिर में ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूरियत। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम यानी मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ह करना। पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इस हिस्से के ज़ैली अज्जा हैं इबारत, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे। गुज़िश्ता सेशंस में हम तफ़हीम के ज़ैली अज्जा इबारत, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ, मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क कर चुके हैं। इस सेशन में हम इबारत और नज़्म पर मबनी सवालात की मश्क का इआदा करेंगे। इक़्तिबास या इबारत पर पूछे हुए सवालात के जवाबात इबारत में तलाश करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको रवानी से पढ़ने की काफ़ी मश्क होनी चाहिए। इसलिए आपको दरसी कुतुब का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए ताकि आप कोई भी इबारत रवानी से कम वक्त में पढ़ सकें और समझ सकें। मुताले के वक्त आपको अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करना चाहिए। लफ्ज़ों के इमला पर तवज्जो देनी चाहिए। मुहावरों और ज़रबुल इम्साल याद रखने चाहिए। इबारत और उस पर मबनी सवालात की मश्क करने से पहले आइए चंद हिदायत पर गौर करते हैं। इबारत को यकसुई और तवज्जो से पढ़ें। उसके मफ़हूम को अच्छी तरह समझ लें। इबारत में दिए गए वाक़यात, बयानात, मुकालमात को बगौर पढ़कर ज़हन नशीन कर लें। हर सवाल के मुतबादिल जवाबात को बगौर पढ़कर सही जवाब तलाश करें।
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عبارت کے متن پر سوالات سلسلے وار ہوں۔ عبارت کو دوبارہ پڑھیں، پہلے جوابات طے کر لیں، پھر صحیح جواب کے متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجیے۔ عبارت پر کم سے کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اعادے کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عبارت اور اس پر مبنی سوالات۔ فروری سن 2020 میں اسکالرشپ امتحان کے پرچے میں جو اقتباس دیا گیا تھا، آئیے اس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہے فروری سن 2020 میں منعقد ہونے والے اسکالرشپ امتحان کا پرچہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں شروعات میں عبارت دی ہوئی ہے اور عبارت پر مبنی 3 سوالات۔ اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایت پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 تا 3 ذیل کا اقتباس پڑھ کر اس کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے صحیح متبادل پہچانیے۔ ام الخیر راجستھان کے پالی گاؤں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدا ہی سے اس کی زندگی دکھ اور مصیبت سے بھری تھی۔ بچپن ہی میں اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ 5 سال کی ہوئی تو وہ اپنے ابو کے ساتھ دہلی کی ایک جھونپڑ پٹی میں رہنے لگی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اپنا خرچ نکالنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اسی دوران اسے ہڈیوں کی ایک خطرناک بیماری ہو گئی، جس میں معمولی چوٹ پر بھی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ اس کے تقریباً 17 آپریشن ہوئے۔ اس کے باوجود اس نے تعلیم جاری رکھی۔ سن 2017 میں ملک کے سب سے بڑے کلیکٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس امتحان میں اس نے کل ہند سطح پر 420واں اور 50 مسلم امیدواروں میں 70واں مقام حاصل کیا۔ اس عبارت میں ام الخیر نامی ایک باہمت لڑکی کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ ام الخیر کہاں کی رہنے والی تھی؟ راجستھان کے پالی گاؤں کی۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ زندگی دکھ اور مصیبت سے بھری ہوئی تھی۔ ابو کے ساتھ دہلی کی ایک جھونپڑ پٹی میں رہنے لگی جب وہ 5 سال کی تھی۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو اپنا خرچ نکالنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ یہی نہیں، اسے ہڈیوں کی خطرناک بیماری بھی ہو گئی، جس میں معمولی چوٹ پر بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے تقریباً 17 آپریشن ہوئے۔ ان سب کے باوجود اس نے اپنی تعلیمی سلسلے کو منقطع ہونے نہیں دیا، تعلیم جاری رکھی۔ 2017 میں ملک کے سب سے بڑے کلیکٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس امتحان میں اس نے کل ہند سطح پر پورے ہندوستان سے جتنے امیدوار اس امتحان میں شریک ہوئے تھے، ان میں 420واں اور 50 مسلم امیدواروں میں 70واں مقام حاصل کیا۔ تو یہ کہانی ہے ام الخیر کی، جو ایک باہمت اور حوصلہ مند خاتون، اس کے حالات زندگی سے ہمیں بھی بہت ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔
उम्मुल खैर के हालात ज़िंदगी पर मबनी इस इबारत पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, उम्मुल खैर को हड्डियों की कौन सी बीमारी हुई? नंबर 1, बचपन में हड्डियां टूटना। नंबर 2, हड्डियों को चोट आना। नंबर 3, खतरनाक बीमारी। या मुतबादिल नंबर 4, मामूली चोट पर हड्डी टूटना। तो इबारत में हमने पढ़ा कि उम्मुल खैर को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि खतरनाक बीमारी ये सही जवाब है, मगर जल्दबाजी से काम नहीं लेना है आपको। आइए इबारत पर नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इबारत में लिखा है उसे हड्डियों की खतरनाक बीमारी हो गई। आगे लिखा है जिसमें मामूली चोट पर भी हड्डी टूट जाती। तो उस बीमारी को यहां वाज़ेह किया गया है। बीमारी खतरनाक तो थी, मगर वो बीमारी क्या थी? मामूली चोट पर भी हड्डी टूट जाती। तो अब आप समझ गए होंगे सही जवाब क्या है? मामूली चोट पर हड्डी टूटना। तो आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाजी में यहाँ मुतबादिल नंबर 3 पर सही का निशान लगाते, सिया दायरा बनाते, तो जवाब गलत हो जाता। खतरनाक बीमारी तो थी उम्मुल खैर को, मगर उसे बयान किया गया है इबारत में, और ऑप्शन में मुतबादिल में भी उसका जिक्र है, लिहाजा हम उसे मुंतखब करेंगे। मुतबादिल नंबर 4 पर सही जवाब है। तो जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे नीले या काले रंग की स्याही से। सवाल नंबर 2, कलेक्टर के इम्तिहान में उम्मुल खैर ने कुल हिंद सतह पर कौन सा मकाम हासिल किया? मुतबादिल हैं नंबर 1 50वां, नंबर 2 420वां, नंबर 3 42वां या नंबर 4 402वां। इबारत में आखिर में बताया गया है इस इम्तिहान में यानी कलेक्टर के इम्तिहान में उम्मुल खैर ने कुल हिंद सतह पर 420वां और 50 मुस्लिम उम्मीदवारों में 17वां मकाम हासिल किया। तो हमारे सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है, कुल हिंद सतह पर 420वां मकाम हासिल किया। सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 420वां। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। कलेक्टर के इम्तिहान में उम्मुल खैर ने कुल हिंद सतह पर 420वां मकाम हासिल किया। सवाल नंबर 3, इस इक्तिबास के लिए आप झेल में से कोई एक उन्वान का इंतखाब कीजिए। 4 उन्वानात दिए हुए हैं। इस इक्तिबास के लिए कौन सा उन्वान मौजू है? नंबर 1 गरीब लड़की, नंबर 2 अच्छी लड़की, नंबर 3 हिम्मत वाली लड़की या नंबर 4 माजूर लड़की। तो उम्मुल खैर गरीब भी थी, वो अच्छी लड़की थी, हिम्मत वाली लड़की थी और माजूर थी। तो ऐसा लग रहा है कि चारों उन्वानात सही हैं, मगर कौन सा इसमें उम्मुल खैर की एक अहम खूबी को जाहिर करता है जिसकी वजह से उम्मुल खैर एक मकाम हासिल कर पाई? वो कौन सी खूबी थी उम्मुल खैर में? इबारत में हम पढ़ चुके हैं उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अपना खर्च निकालने के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। खतरनाक बीमारी हो गई थी,
मगर इन सब के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, तालीमी सिलसिले को जारी रखा और सन 2017 में मुल्क के सबसे बड़े कलेक्टर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इससे पता चलता है कि उम्मुल खैर एक बाहिम्मत लड़की थी जिसने मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया, हौसला नहीं हारा, बल्कि तालीमी सिलसिला जारी रखते हुए मुल्क के सबसे बड़े इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल की। तो इस इक़्तिबास के लिए आप ज़ैल में से कौन सा उन्वान मुंतखब करेंगे? नंबर 1 गरीब लड़की, नंबर 2 अच्छी लड़की, नंबर 3 हिम्मत वाली लड़की या नंबर 4 माजूर लड़की? तो नंबर 3 हिम्मत वाली लड़की इस इक़्तिबास के लिए मुनासिब है, लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे को सियाह करेंगे। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का दूसरा ज़ैली जुज़ है नज़्म। छोटी जमातों से लेकर आज तक आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नज़में पढ़ी हैं। कुछ नज़में तो आपको याद भी होंगी। आखिर नज़्म कहते किससे हैं? नज़्म के क्या मानी हैं? कोई भी लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो होते हैं उस लफ्ज़ के लुग़वी मानी यानी असल मानी। लुग़वी का मतलब है लुग़त से मंसूब। तो किसी भी लफ्ज़ के लुग़वी मानी होते हैं और आम ज़ुबान में उसका इस्तेमाल कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं। नज़्म के लुग़वी मानी मोती पिरोने के हैं। तो नज़्म के असल मानी है मोती पिरोना। नज़्म के लुग़वी मानी से आप वाकिफ हो गए हैं। इस्तिलाह आम में नज़्म किसे कहते हैं? इस्तिलाह आम में किसी चीज़ की तंजीम, आराइश या तरतीब देने को नज़्म कहते हैं। और अब हम देखेंगे शायरी की एक सिन्फ नज़्म। नज़्म शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ ख्यालात का इजहार किया गया हो। इसका मतलब है नज़्म के लिए एक मरकजी ख्याल का होना ज़रूरी है। नज़्म एक मौजू पर तसलसल के साथ ख्यालात का इजहार करती है। यहाँ आप देख सकते हैं नज़्म प्यारी माँ। इसमें माँ की मोहब्बत, माँ की अहमियत बताई गई है। अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी को लीजिए, इसमें हिंदुस्तान की तारीफ बयान की गई है। तो नज़्म के लिए एक मरकजी ख्याल का होना ज़रूरी है। नज़्म और उस पर मबनी सवालात हल करते वक्त दर्ज झैल बातों को पेश नज़र रखें। ये निकात बहुत अहम हैं, इन्हें आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नज़्म को तवज्जो के साथ पढ़कर मतलब को समझें। नज़्म का उन्वान, वाक़या
اور بیان کو ذہن نشین کریں۔ نظم میں آنے والے اہم الفاظ پر توجہ دیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں؟ پوری نظم نہیں پڑھتے اور پہلے ہی سوال پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جلد بازی میں غلط جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ نظم کو پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے ذہن نشین کریں۔ نظم پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آئے تو فوراً نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑائیں اور جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی یا خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً نظم کی متعلقہ سطر پر نظر دوڑائیں تو یقیناً اس لفظ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور جواب تلاش کریں۔ نظم کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو روانی سے استعمال کرنے کے لیے اس زبان کے ذخیرہ الفاظ پر عبور ہونا ضروری ہے۔ ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کا ذخیرہ، ووکیبلری، تاکہ مختلف خیالات اور جذبات کی عکاسی کے لیے آپ صحیح لفظ کا استعمال کر سکیں۔ یہاں نظم کو سمجھنے کے لیے بھی ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے کہ شاعر آخر نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں۔ اگر متبادل جوابات میں سے پہلا ہی جواب صحیح معلوم ہوتا ہو تو اسے لکھنے میں جلدی نہ کریں۔ تمام متبادلات پر غور کریں اور صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجیے۔ نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا اقتباس پر 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح نظم پر کم از کم 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ نظم اور اس پر مبنی سوالات۔ نظم نمبر 2 دراصل فروری 2019 میں منعقد ہوئے اسکالرشپ امتحان کے پرچے میں شامل نظم ہے۔ یہ ہے سوالی پرچہ جس میں نظم کو شامل کیا گیا ہے اور نظم پر مبنی 3 سوالات۔ تو آئیے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پسینہ بہا کر زمین توڑتا ہے، اسے صاف کرتا ڈلے پھوڑتا ہے۔ جو سوکھا پڑے تو کنواں جوڑتا ہے، کسی کام سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ وہ دن رات ہے کھیت میں اپنے حاضر، وہ جیتا ہے گویا کہ کھیتی کی خاطر۔
मवेशी से है रूह तकशाद उसकी, कि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। ना होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। कितनी खूबसूरत नज्म है। और आप समझ गए होंगे इसमें किसका जिक्र किया गया है। खेतों में कौन काम करता है? किसान। तो इस नज्म में किसान की मेहनत को बयान किया गया है। एक बात पर आपने गौर किया होगा कि नज्म में लफ्ज किसान कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर ये नज्म दरअसल किसान और उसकी मेहनत को जाहिर करती है। पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है। आप जानते हैं कि किसान खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। हल चलाना, बीज बोना, पानी पहुंचाना, खेतों की हिफाजत करना, और किसान की इतनी मेहनत के बाद फिर खेत लहलहाते हैं। जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है। अगर कहीं सूखा पड़ जाए, कहत पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो अपने खेतों तक पानी पहुंचाने की तगदो करता है। कुआं जोड़ना, कुएं में पानी होता है तो किसी भी तरीके से वो पानी हासिल करने की कोशिश करता है ताकि सूखा पड़ने के बावजूद उसका असर उसके खेतों पर ना हो, उसकी फसल पर ना हो। किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। ऐसा लगता है जैसे बस वो अपनी खेती की खातिर ही जी रहा है। मवेशी से है रूह तक शाद उसकी। शाद यानी खुश। मवेशियों से तो उसकी रूह भी खुश है। क्यों? क्योंकि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। मवेशी मदद करते हैं किसान की, तो क्यों ना उसकी रूह तक शाद हो अपने मवेशियों को देखकर। पली जो है नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेती को आबाद उसकी। अपनी औलाद को बड़े नाजों से पाला है किसान ने, और किसान के बाद आगे चलकर उसकी औलाद जो है वो खेती को आबाद रखेगी। यानी किसान के बाद खेतों में काम उसकी औलाद करेगी, उसकी खेती को आबाद रखेगी। ना होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। और जब किसान नहीं होगा दुनिया में, मगर उसका खेत तो हजारों बरस लहलहाता रहेगा, क्योंकि उसकी औलाद और आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी खेती को आबाद रखेंगी। बहुत ही खूबसूरत नज्म, किसान की मेहनत को बड़ी सादगी के साथ बयान किया गया है। और अब सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 4 ता 6, यानी सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 इस नज्म पर मुश्तमिल सवालात हैं। खेत की जमीन किसान किस तरह तोड़ता है? मुतबादिल हैं। नंबर 1 खून बहाकर, नंबर 2 पानी बहाकर, नंबर 3 पसीना बहाकर, या नंबर 4 लहू बहाकर। नज्म में शायर ने पहले ही मिसरे में बयान किया है, पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है। तो सही जवाब है पसीना बहाकर। खेत की जमीन किसान किस तरह तोड़ता है?
متبادل نمبر 3 پسینہ بہا کر. تو ہم جوابی پرچے میں 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کس رنگ کے قلم سے؟ نیلے یا کالے رنگ کے قلم سے، پینسل سے بالکل بھی نہیں. تو یہاں صحیح جواب متبادل نمبر 3 پسینہ بہا کر. کھیت کی زمین کسان پسینہ بہا کر توڑتا ہے. سوال نمبر 5 ہے، کھیتی میں کسان کی مدد کون کرتا ہے؟ متبادل ہیں. نمبر 1 اولاد، نمبر 2 مویشی، نمبر 3 رشتہ دار، نمبر 4 پڑوسی. تو اب آپ کو یہاں جلد بازی سے کام نہیں لینا. ہم دیکھیں گے نظم میں کس کا بیان ہے، کون کسان کی مدد کرتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں. شعر نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مویشی سے ہے روح تک شاد اس کی، کہ کھیتی میں کرتے ہیں امداد اس کی. امداد مدد کی جمع ہے. تو کون مدد کرتا ہے کسان کی کھیتی کے کاموں میں؟ اس کے مویشی. کھیتی میں کسان کی مدد کون کرتا ہے؟ ہم نے جواب کو پرکھ لیا. صحیح جواب آپشن نمبر 2 پر ہے، مویشی. لہذا ہم جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. سوال نمبر 6 ہے، کسان کی کھیتی کو کون آباد رکھے گا؟ متبادل ہیں. نمبر 1 بیوی، نمبر 2 موسم، نمبر 3 پانی، یا نمبر 4 اولاد. نظم میں ہم پڑھ چکے ہیں، پلی جو ہے نازوں سے اولاد اس کی، یہ رکھے گی کھیتی کو آباد اس کی. تو کسان کی کھیتی کو کون آباد رکھے گا؟ نازوں سے پلی کسان کی اولاد. یہاں صحیح جواب ہے اولاد. تو سوال نمبر 6، کسان کی کھیتی کو کون آباد رکھے گا؟ متبادل نمبر 4 پر اس کا صحیح جواب ہے اولاد. کسان کی کھیتی کو اولاد آباد رکھے گی. تو ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اقتباس پر مبنی سوالات کے جوابات اقتباس میں تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو روانی سے پڑھنے کی کافی مشق ہونی چاہیے. اس لیے آپ کو درسی کتب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کوئی بھی عبارت روانی سے اور کم وقت میں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. مطالعے کے وقت آپ کو اپنے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرنا چاہیے. لفظوں کے املا پر توجہ دینی چاہیے. جہاں تک اسکالرشپ امتحان کا تعلق ہے، کسی بھی مضمون کے نصاب کی حد مقرر نہیں ہے، اس لیے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.